Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter, getting to know plants. And in this chapter, we have discussed stem, function of stems, okay, the modification of stems. And then in the previous lecture, we have discussed the leaves. Okay, we have discussed the leaf, their structure, their function, okay. And today we are going to discuss a very important part, a very important part of the plant, that is the root. Yes बच्चों, बहुत important part है ये plant का, okay. And in this we'll discuss about the structure of the root, types of the roots, okay, and what are the functions of roots with the help of some interesting activities, okay. So children, here's the picture 7.13. Can you tell me who is watering the plant correctly? पहेली और बूझो. So this girl is watering the plants in the roots and the boy is watering the plants to the leaves. Can you tell me who is watering correctly? Obviously the girl. Okay. So and why? Why? How can you tell that she's watering the plant correctly? And you know, bachcho, which part of the plant is in the soil? Have you ever wondered? Yes, the roots. Okay. See, the part of a plant which is above the soil, that is the shoot system. Okay. And the part of a plant which is inside the soil is what? Your root system. Okay. So it is basically divided on this, the shoot system and the root system. Okay. So today we are going to discuss the root system basically. Okay. And we'll discuss it more. So here's the activity. Let's move further to this activity 6 in your NCERT textbook. What you would require, you require 2 pots, some soil, one khurpi. Khurpi, you know, it is used for digging, okay? Blade or a pair of a scissor and a water, okay? This activity is to be done in the group of 4 or 5, but you can do it at a home also, okay, with the help of your parents, guardians, okay, your elder brothers, sisters, okay. So see, what you have to do, you have to select 2 weeds. बच्चों weeds क्या होते हैं? WEEDS. What are weeds? Weeds बच्चों ऐसे खरपतवार होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो खुद से क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है. तो आपको कोई भी ऐसे वीड्स लेने हैं, ठीक है, सेम काइंड, दोनों का सेम काइंड होना चाहिए, सेम प्रकार के 2 वीड्स लेने हैं. आप ओपन ग्राउंड में जाओ, खुरपी की मदद से उसको डिग करके आप ले आओ, ठीक है. नाउ टेक केयर ऑफ देयर रूट्स. बस आपको ये ध्यान देना है कि उनके रूट्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, उनके रूट्स टूटने नहीं चाहिए, ठीक है. अब आप 2 छोटे छोटे ऐसे प्लांट, छोटे छोटे हर्ब्स लेकर के आए, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, है ना. तो तुलसी आपकी वीड नहीं है, वो तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो है आपके प्लांट, ठीक है. तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसी टाइप के जितनी बड़ी तुलसी होती है ना, छोटी छोटी, ठीक है, बेसिल्स प्लांट होते हैं, उतने बड़े बड़े आप कोई भी खरपतवार वीड टाइप का चाहिए, आप कोई भी 2 जो है डिग करके ले आएंगे. और एक छोटे से पॉट में, पॉट नहीं है तो आप क्या प्लास्टिक के ग्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके आप उस दोनों को उसमें लगाना है. लेकिन कैसे लगाना है वो मैं बता रहा हूँ. एक को आपके रूट के साथ लगाना है, ठीक है, और दूसरे वाले के रूट को कट करके लगाना है. समझ में आ रहा है, ठीक है. दोनों प्लांट्स को क्या करना है, एक को आपको रूट के साथ लगाना है, दूसरे के रूट्स को कट करके लगाना है, और आपको डेली उसमें वाटरिंग करनी है. व्हाट विल ऑब्जर्व आफ्टर 4-5 डेज. आप 4 से 5 दिन बाद क्या देखोगे, है ना, कि जिसमें रूट नहीं है और जिसमें रूट है, क्या आपको क्या दोनों में डिफरेंस दिखेगा 4-5 दिन के बाद? दोनों में आप पानी दे रहे हो, दोनों को आपने सॉइल में लगाया हुआ है ना. सो इससे एक चीज़ आपको क्लियर होगी, क्या, इससे हम एक फंक्शंस पे जाते हैं कि इससे क्या पता चलता है बच्चों कि फंक्शन ऑफ रूट समझ में आता है ना, कि जो आपके रूट्स होते हैं, आप देखोगे कि जिसमें रूट्स नहीं थे, द प्लांट विच डू नॉट हैव ए रूट, वो सूख जाएगा, विल्ट हो जाएगा, और जिसमें रूट्स हैं वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा. तो इससे हमें एक चीज़ पता चला, क्या, कि द रूट्स हेल्प द प्लांट्स
to absorb water and nutrients from the soil. A very important function, children. What? They help in absorption of water and nutrients from the soil. यानी जमीन से, सॉइल से, ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं रूट. अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, चिल्ड्रन. नोट इट डाउन. Okay, so the root helps plants to absorb water and nutrients from the soil, which are essential for the survival. तो इस एक्टिविटी से आपको क्या सीखने को मिला कि रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, एज दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, चलो लेट्स मूव टू द अनदर एक्टिविटी. एक्टिविटी 7. बच्चों, वी वुड रिक्वायर्ड एक्टिविटी 7 में क्या क्या चाहिए हमें? एक 2-4 ग्राम्स के सीड यानी चना चाहिए, उसके सीड्स चाहिए, ठीक है, और एक मक्के का सीड चाहिए, 2-4 मक्के के सीड चाहिए, ठीक है. कॉटन वूल होता है ना, कॉटन, ठीक है, रुई, थोड़ा सा कॉटन चाहिए, 2 कटोरी चाहिए और थोड़ा सा वाटर चाहिए, ठीक है. ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप इसको घर पे कर सकते हो. समझ में आया? यानी 2-4 चने के सीड्स चाहिए, 2-4 मक्के के सीड चाहिए, 2 कटोरी चाहिए, थोड़ा सा कॉटन चाहिए और पानी चाहिए. ओनली दिस मच वी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी 7. अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, चिल्ड्रन. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपको, ठीक है. हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ अ रूट. एक्टिविटी के थ्रू हम लोग फंक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू टेक 2 कटोरीज, ठीक है. प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम, ठीक है. Put 3-4 seeds of gram in one and maize in the other. ठीक है, आप 2 कटोरी लीजिए, ठीक है, और उन दोनों में थोड़ा सा वेट कॉटन को थोड़ा गीला करके और दोनों कटोरी में रख दीजिए. और उसके बाद उसमें क्या करिए, ऊपर से थोड़े से सीड्स क्या कर दीजिए, 3-4 सीड्स आप ग्राम के एक कटोरी में डाल दीजिए और दूसरी कटोरी में मेज के आप सीड्स डाल दीजिए, ठीक है. ये एक्टिविटी करना है, ओके. और आपके फिर ऑब्जर्व करके बताना है कि व्हाट वी हैव ऑब्जर्व. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. आप 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, कॉटन को क्या करती, ठीक है, हल्का उसको वेट किए रहिए, हल्का सा वाटर स्प्रिंकल करके उसको वेट किए रहिए, सूखे ना, ठीक है. कब तक? जब तक उसमें स्प्राउट्स नहीं आ जाते. स्प्राउट्स आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया कि वाटर स्प्राउट्स, दे आर द वाइट आउटग्रोथ्स कमिंग फ्रॉम द सीड्स. स्प्राउटिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है. तो जब तक उसमें स्प्राउट्स नहीं आते तब तक आप उसको क्या करिए, हल्का हल्का वाटरिंग करते रहिए, स्प्रिंकल करना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, स्प्रिंकल करना है, ठीक है. उसके बाद उसको ऐसे छोड़ दीजिए. 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल. 1 वीक के बाद जब आप क्या करेंगे, उन जो प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स उसमें जो निकल रहे हैं, जो स्प्राउट्स निकल रहे हैं, उस चने को आप उस उठाएंगे जब ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, उसको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए, वो इजीली सेपरेट नहीं होगा, है ना. इट विल नॉट इजीली सेपरेट फ्रॉम द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स. व्हाई? तो इस समय एक चीज सीखने को मिला बच्चों कि जो आपकी रूट्स होती है ना, है ना, जो रूट्स होती हैं, वो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, जो चने का और इसके जो रूट्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉटन वूल को पकड़ लिया था, है ना, जिससे जब आप उस चने को उठा रहे थे तो कॉटन भी ऊपर आ जा रहा था. समझ में आ रहा है? इन द सेम वे जो आपकी प्लांट्स की रूट्स होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, अंदर से पकड़ लेती हैं, जिससे उन्हें किस में सहायता मिलती है, एंकरिंग में, एंकरिंग, सॉरी, ठीक है. तो एंकरिंग में इसमें बहुत ज़्यादा, एंकरिंग द प्लांट क्या है बच्चों, एंकरिंग द प्लांट मतलब ये है कि आपका प्लांट फॉर्मली ग्राउंड से क्या होगा, अटैच हो जाएगा. जब आप किसी प्लांट को लगाते हो तो वो गिरता नहीं है ना, वो एकदम क्या होता है, एकदम ऊपर खड़ा रहता है. कितनी भी हवा चलती है, कुछ भी होता है, आंधी तूफान आता है, वो एकदम खड़ा रहता है. क्यों खड़ा रहता है बच्चों? गिर क्यों नहीं जाता? कोई सपोर्ट तो है नहीं, वो अपने रूट्स की वजह से. क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स ने क्या किया है, अंदर सॉइल के अंदर जा करके बहुत ही टाइटली सॉइल को पकड़ रखा है, एंकर. तो इसको बोलते हैं एंकरिंग द प्लांट. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ रूट बच्चों. इस एक्टिविटी के थ्रू हमने यही सीखा, है ना, एंकरिंग द प्लांट. तो रूट हेल्प्स टू एंकर द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड. समझ में आ रहा है? सेकंड फंक्शन, रूट हेल्प्स टू एंकर द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड या फॉर्मली इनटू द ग्राउंड.
तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं बच्चों रूट्स के, है ना। सो देखो लिखा भी है, द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल एंड दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। तो इस तरीके से फर्मली उसको होल्ड करके रखते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको पता है बच्चों, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स, हम पढ़ चुके हैं ना। वी हैव डिस्कस द लीव, वी हैव डिस्कस द स्टेम, और हमने क्या देखा बच्चों कि स्टेम और लीव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इन द सेम वे बच्चों रूट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यस, अब हम पढ़ेंगे टाइप। हाँ बच्चों एक चीज़ और इसमें दिया नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। आपके एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ रूट्स का। बच्चों ये जो रूट्स होते हैं, ठीक है, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अब आप पूछिए बच्चे सॉइल इरोजन क्या होता है सर। बच्चों ये जो सॉइल इरोजन है ना, इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, ठीक है, और जब बारिश होती है पानी जब बहता है, बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, जब पानी बहता है तो आपने देखा होगा जो ऊपर की जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होती है ना, वो भी पानी के साथ बह जाती है। देखा है आपने, है ना। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारी घास लगी हुई है, आपका जो फुटबॉल ग्राउंड है आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, तो क्या कभी फुटबॉल ग्राउंड की मिट्टी बह के जाती है पानी के साथ? नहीं बहेगी। क्यों? रीज़न क्या है? मतलब आप आपको दो केस, दो सिचुएशंस में दे रहा हूँ, दोनों पे विचार करना है, दोनों को सोचना है। एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें बिल्कुल भी घास नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, और दूसरा ग्राउंड है जिसमें क्या है, पूरी मतलब ग्रास है, अच्छी ग्रीनरी है। बारिश आई, ठीक है, बारिश का पानी आया, बारिश पानी बह रहा है तेज़ी से, ठीक है। उसके बाद जब बारिश का पानी ख़त्म हो गया तब आप क्या देखोगे कि जिस ग्राउंड में ग्रास नहीं थी वहाँ की मिट्टी बह गई है। ऊपर की मिट्टी क्या हो, देखा है ना, बह जाती है ना। और जिसमें ग्रास होती है वहाँ की मिट्टी नहीं बहती। तो व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज द रूट्स। आपने आपके जो रूट्स हैं, है ना, प्लांट की जो ग्रासेस की जो रूट्स हैं, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखा है, एंकर करके रखा है फॉर्मली। इससे आपके ऊपर की मिट्टी जो है तो बह नहीं पाती। तो बच्चों एक तो ये फंक्शन होता है कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो सॉइल इरोजन क्या हुआ, बारिश की वजह से या हवा की वजह से अगर सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो बह जाती है ना, तो इसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। और जब ऊपर की हमारी लेयर जब बह जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो फर्टाइल पार्ट होगा सॉइल का वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो आपका रूट्स होती हैं, ठीक है, दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर and thereby they preventing them from being carried away by water or the wind. So in this way they prevent from soil erosion. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और मैंने एकदम बहुत अच्छे से आपको समझाया है, एंड आई होप आपको सॉइल इरोजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप 2 बार 3 बार वीडियो के देखिए, नहीं समझ में आएगा, ऑलवेज 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं हूँ, मैं आपकी सारी क्वेरीज को, सारी चीज़ों को बताऊंगा। ओके, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी 8, स्टडी द फिगर 7.16 एंड बी केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स you have pulled out from the cotton wool. Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those in 7.16b? देखो बच्चों, जब आपने 1 वीक के बाद उन ग्राम्स को, उन चने को जब आप बाहर निकाला तो उसके रूट्स आपको किस टाइप के दिखेंगे। यहाँ पे 2 फिगर दिया है, फिगर ए एंड फिगर बी। आपको बताना है उनके रूट्स 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जब आप निकालेंगे तो उनके रूट्स कैसे दिख रहे हैं। डेफिनेटली जो बी वाला पार्ट है, ये इस टाइप का जो रूट होगा वो ग्राम का होगा, चने का होगा। और जो दूसरा वाला जो आप ए वाला देख रहे हैं ये मेज़ का होगा, मेज़, MEIZE, मेज़, है ना। तो क्या दोनों के रूट सेम है? नो, दोनों के रूट सेम नहीं हैं। यस, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है बुक में आपको ये फिल करना है, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन 1 वीक। नाउ इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज़ सिमिलर, इन व्हाट वे दे लुक डिफरेंट, है ना। हाँ, यस, डेफिनेटली दे आर डिफरेंट, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट। तो अब हम टाइप्स ऑफ रूट की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक्टिविटी 9 को देखते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप ये परफॉर्म करके ये वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, पॉज कर करके देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म घर पे कर रहे हैं। बच्चों देखो, मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है, ठीक है, कि मैं आपको सामने से ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करा रहा हूँ। मैं बहुत इंटरेस्ट से ये सारी चीज़ें कराने का मेरा मन था, ठीक है, बट कोई नहीं, जब भी हम लोग मिलेंगे हम इस एक्टिविटीज़ को करेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन अभी आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी खुद से करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। और हम क्या करेंगे, करते करते सीखेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली आप इसमें बारिश भी हो रही है, बहुत सारे आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारे छोटे 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 हर्ब्स निकले होंगे, आप उसी में से 2 हर्ब्स निकाल करके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बच्चों, कि ये सारी चीज़ें आपके आसपास हैं, है ना। तो अब ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है बच्चों, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग। बहुत सारे वीड्स आपको समझ में आ गया होगा, अनवांटेड प्लांट, खरपतवार, घास जिसकी जरूरत नहीं होती, जो उगता रहता है ना। तो उसमें से क्या करेंगे, डिग आउट फ्यू वीड्स, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, है ना। आप उन वीड्स को उखाड़ के लाइए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीड्स को, एक टाइप की नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीड्स को उखाड़ के लाइए, और ऐसे उखाड़िए कि उनकी रूट्स जो है क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद उन क्या करें, उनको अच्छे से वॉश करिए सॉइल को रूट से, और उसको ऑब्जर्व करिए। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन द फिगर। आप देखोगे कि जो भी आप डग आउट करके लाए हैं वीड्स को, उनकी जो रूट्स होंगी या तो ए टाइप, देखो फिगर देखिए, या तो ए टाइप की होगी या बी टाइप की होगी, ठीक है। अगर आपकी रूट्स ए टाइप की हैं तो इन टाइप के रूट्स को हम लोग बोलते हैं टैप रूट, रिमेंबर, TAPROOT, टैप रूट। और अगर बी टाइप की है, इट इज द वर्ड फाइब्रस रूट। व्हाट इट इज, फाइब्रस रूट। अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, सोचो जरा, मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं आपको। इन दोनों रूट्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स। फर्स्ट वन इज द टैप एंड द सेकंड वन इज व्हाट, फाइब्रस रूट। कभी ऑब्जर्वेशन किया है ऐसा, नहीं किया तो हाथ जरूर करना, आज आपको ये ऑब्जर्वेशन जरूर करना है बच्चों, ठीक है, कि टैप रूट और फाइब्रस रूट, किन प्लांट्स में टैप रूट पाया जाएगा, किन प्लांट्स में फाइब्रस रूट पाया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आज आपको जो है रूट्स के बारे में ये चीज़ें जानने को मिली हैं, और आप इसको ज़रूर ऑब्जर्व करें। तो चलो बच्चों, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बच्चों देखो, ये जो आपका टैप रूट है, इस टैप रूट में आप देख रहे हो कि एक मेन रूट निकली हुई है, दिख रहा है, जो थोड़ी मोटी सी है, ठीक है। टैप रूट में देखो एक मेन मोटी सी रूट सीधे नीचे आ रही है, और उससे क्या हो रहा है, छोटी छोटी पतली 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 रूट्स निकल रही हैं। यानी एक मेन रूट, और उस मेन रूट से बहुत सारे छोटी 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 मेन ब्रांचेस निकली हैं। इस टाइप के रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। अब दूसरी देखिए, बी वाले में क्या है, आपको यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी मेन रूट दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं, कोई मेन रूट नहीं है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी मेन रूट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी रूट्स निकली हैं एकदम बेस ऊपर से। तो इस टाइप की रूट को हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। इस टाइप की रूट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फाइब्रस रूट। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंटरेस्टिंग है ना। अभी आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। आप पता है, आप ऊपर से लीव्स को देख कर भी बता सकते हो कि नीचे सॉइल के अंदर कौन सी रूट है। यस, अगर आपको लीव्स, मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक, कि कैसे आप लीव्स को देख के बता सकते हो कि नीचे जो है ट्रैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी, है ना। इंटरेस्टिंग, अभी बताता हूँ। आज आपको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखो, तो मैंने अभी क्या बताया, फॉर द काइंड, the root of the kind shown in the figure, the main root is called the tap root and the smaller roots are called lateral roots. Means आप देखो, ये जो टैप रूट था ना, इस टैप रूट में जो मेन रूट निकल रही है, जो जो थिक है, पतली से नीचे आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैप रूट। और इससे जो पतली पतली छोटी छोटी जो रूट्स निकल रही है ना, इनको हम लोग लेटरल रूट्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, लेटरल रूट्स, है ना। तो ये टैप रूट के ही पार्ट्स हैं, टैप रूट का ही से साइड से निकलने वाली रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। अब हम बी वाले पे आते हैं। बी वाले में क्या है, कोई यहाँ पे मेन ब्रांच नहीं, मेन जो है रूट नहीं, यहाँ बहुत सारी सेम टाइप के जो है रूट्स निकले हुए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट्स। ओके, नाउ सी, अब इन दोनों वीड्स को, लीव्स को अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर इन दोनों प्लांट्स के लीव्स को अगर आप देखोगे तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस मिलेगा। क्या बच्चों,
अगर आप टैप रूट वाले प्लांट को देखोगे, ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे टैप रूट वाले प्लांट को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टैप रूट का प्लांट है उनकी जो लीव्स हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन है। यस बच्चों, मीन्स ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा चुका हूं मैं, ध्यान दो पिछले वीडियो में, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ का, जैसे पीपल, मैंगो, नीम, समझ में आ रहा है, बताया मैंने आपको। तो ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स के रूट टैप रूट होते हैं। समझ में आया है ना, आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है ये। आज आप करके देखना, बहुत सारे वीड्स को उखाड़ो और जरूर देखो, उसको डिग आउट करिए, देखिए कि अरे कैसे इसमें रूट्स हैं। ये आज आपकी एक्टिविटी है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसी जगह मत जाना क्योंकि बरसात का मौसम है, ठीक है, बहुत सारे आपको इंसेक्ट्स और बहुत सारे इस समय रेप्टाइल्स मिल सकते हैं, तो ठीक है, तो जंगल में या कोई ऐसी बुशेस में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना कोई कीड़ा काट सकता है आपको। सो स्टे सेफ, ठीक है, घर में रह कर अपने गार्डन में, ठीक है, ऊपर छत पे अगर है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या मैंने बताया कि जो आपका रेटिकुलेट, ऐसे प्लांट जो रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं, उनकी रूट जो होती हैं वो क्या होती हैं, टैप रूट होती हैं। आप उखाड़ के देखना, उनको डिग करके देखना, टैप रूट, एक मेन रूट जाएगी और फिर उससे छोटे छोटे पतली पतली लेटरल रूट्स निकलेंगी। तो ये होता है आपका टैप रूट सिस्टम। यानी अगर उनकी लीव्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन, तो उनमें टैप रूट पाया जाएगा। और दूसरा, ऐसे वीड्स या ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन, याद आ रहा है पैरेलल वेनेशन, है ना, जैसे बनाना, मक्का, मेज, धान, इस समय तो धान हर जगह खेत में लगा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, धान है ना, गेहूं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये जो है आपकी क्या है, तो ऐसे प्लांट जिनके लीव्स जो है पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं, उनकी रूट्स आपकी कैसे होती हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं। यस चिल्ड्रन, दे आर द फाइब्रस रूट, है ना, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देखो एक्टिविटी 7.2, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड द टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, ठीक है, आपको 2 प्लांट्स यहाँ लिखने हैं, उनमें लीफ वेनेशन लिखना है किस टाइप का है, और उनमें रूट्स किस टाइप के हैं, ये आपको आज फिल करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने आज ये देखा कि जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या फंक्शन होता है। पहली बात तो हमने देखा कि द रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू द लीव्स। यानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वाटर और मिनरल को लीव्स तक कौन लेके जाता है, स्टेम लेके जाता है ना। और जो भी जो फूड बनता है आपका लीव्स में, ठीक है, वो क्या होता है, वो सब ट्रेवल होता है हर जगह, कौन कैसे जाता है, वो भी स्टेम के थ्रू जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। एक चीज़ और बताऊं बच्चों, आपको मैंने बताया था रूट के मॉडिफिकेशन, याद आ रहा है, रूट के मॉडिफिकेशन याद आ रहे हैं। बहुत सारे रूट्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, उनका उसमें फूड स्टोर होता है। यस, हम याद करो फर्स्ट चैप्टर, है ना। तो जिसका बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनका रूट को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, है ना, उनको हम लोग मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, इसमें फूड स्टोर होता है ना, याद आया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे क्या है, रूट के मॉडिफिकेशंस भी हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। और आपको मैं बताऊं जो आपका स्टेम होता है, ठीक है, वो 2 वे स्ट्रीट होता है। यानी स्टेम नीचे से ऊपर वाटर को भी ले जाता है और ऊपर से नीचे फूड को लेके आता है। तो 2 वे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रीट देखने को मिलेगा। तो आज का ये लेक्चर आई होप बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 1-2 बार देखिए, एकदम याद हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा आज का वीडियो आपको, ठीक है। और होमवर्क क्या है आपका, ठीक है, होमवर्क आपको ये देखिए, टैप रूट और फाइब्रस रूट का डायग्राम आपको अपनी बुक में बनाना है, और सॉरी कॉपी में, अपनी नोटबुक में बनाना है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट का क्या डायग्राम। और बुक में आपको टेबल 7.2, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, एंड दिस फिगर 7.16, इनके दोनों पार्ट्स को फिल करना है। समझ में आ रहा है। यस, आज का वीडियो देखो, अच्छे से समझो, ठीक है, और ये होमवर्क अपनी कॉपी में जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है, कुछ नए इंटरेस्टिंग
ठीक है, टॉपिक्स के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।